پاکستان کی بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکروں پر حوثی ملیشیا کے حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایکس پر لکھا، میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پوری پاکستانی قوم اس نازک وقت میں سعودی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ حوثی ملیشیا کے اقدامات ناقابل قبول اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ بحیرہ احمر میں حملے جہاز رانی کی آزادی اور علاقائی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کا علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ ایران معاہدے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ایران جب بھی معاہدہ کرتا ہے اسے توڑ دیتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی منیلا میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ایران کو اپنی ضد کی قیمت چکانا پڑے گی، ایرانی قیادت کے ہوش میں آنے تک یہ قیمت بڑھتی رہے گی۔ سعودی عرب کے خلاف حوثیوں کے اقدامات قابل مذمت ہیں، امید ہے حوثی حملے بند کر دیں گے ورنہ انہیں پتہ ہے ان کا کیا نقصان ہوگا۔ سعودی عرب امریکہ کا اہم اسٹریٹجک اتحادی ہے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مختلف معاہدے کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے خطے میں امن و استحکام کے لیے فعال سفارتی کردار ادا کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل میں سہولت کاری کی۔ عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر کثیر الجہتی تعاون ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آسیان ریجنل فورم سے خطاب، کہا تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں، سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کریں۔ بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا تشویشناک اور اشتعال انگیز اقدام ہے۔ جموں کشمیر کے تنازع کا حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی بنیاد ہے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی حمایت جاری رکھے گا۔ عالمی برادری بین الاقوامی قانون کے تحت اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستان نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، مذاکرات اور سفارتکاری کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا حالیہ دہشت گردی کے کئی واقعات میں افغان شہری ملوث پائے گئے۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ایمنسٹی کی رپورٹ مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل افغانستان صورتحال کے تناظر میں اصل وجوہات کو سامنے لانے میں ناکام رہی۔ مسونگ میں ولی خان بائی پاس پر فائرنگ، سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ محافظ سمیت شہید ہو گئے۔ حملے میں ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری زخمی ہوئے۔ حکومت بلوچستان کے مسونگ حملے کی مذمت، دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کے معاون شاہد رند کہتے ہیں قانون کے محافظوں اور ججوں پر حملہ ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ بلوچستان حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھے گی۔ پنجاب میں مونسون کا طوفانی اسپیل، لاہور میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقوں کے ساتھ پوش علاقوں کی سڑکیں بھی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ہربنس پورہ انڈر پاس میں پانی داخل، سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے علاقے میں 263 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بھارت کی جانب سے سلال ڈیم سے پانی چھوڑنے پر دریائے چناب میں صورتحال سنگین ہو گئی۔ ہیڈ مرالا پر اونچے درجے کا سیلاب آ گیا۔ چنیوٹ سے ملحقہ بستیاں دریائے چناب کی موزور موجوں کی زد میں آ گئی ہیں۔ فصلیں اور مکان ڈوب گئے ہیں۔ وزیر آباد میں خانکی بیراج پر پانی کی سطح بلند، مزید بڑا ریلا گزرنے کا خدشہ۔ گجرانوالہ میں بارش کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے، سڑکیں گلیاں ڈوب گئی۔ گلگت بلتستان میں بھی تیز بارش، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی۔ شاہراہوں پر آمد و رفت معطل۔ چھموگڑھ میں عارضی جھیل ٹوٹنے سے دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال۔ چلاس کی وادی تھورداس میں رہائشی آبادی میں دریائے سندھ کا پانی داخل، ریلا 3 مکانات بہا لے گیا۔
परोड़ी में फ्लैश फ्लड से 35 मकानात मुकम्मल तबाह। सैलाब से ज़राई अराजी, फसलें, दरख्त और मवेशियों के बाड़े भी मुतासिर हुए। सदर आसिफ अली जरदारी की मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, वफाकी और सूबाई इदारे क्लाउड बर्स्ट, ग्लोव, लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के पेश नज़र तैयारियां तेज रखें। गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर खुसूसी तवज्जो दें। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में IMF हुकाम से मुलाकातें, पाकिस्तान की माइक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल, EFF और RSF प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त, टैक्स और तवानाई इस्लाहात पर बातचीत। वजारत खजाना के एक एलामिये के मुताबिक मुलाकातों में निजकारी, टैरिफ रैशनलाइजेशन, कर्जों के इंतजाम, ज़र मुबादला ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफे पर भी तबादला ख्याल किया गया। IMF ने इंसानी वसाइल की तरक्की, ख़वातीन की मुआशी शमूलियत, टेक्नोलॉजी और बरामदात पर मबनी तरक्की पर जोर दिया। वजीर खजाना ने हुकूमत के माली नज़्म ज़ब्त के अज़्म का अदा करते हुए IMF के ताउन पर शुक्रिया अदा किया है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस पर काबू पाने के लिए इक़दामात को कौमी फरीज़ा समझा जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहबूद आबादी के हवाले से जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, आबादी में तवाज़ुन ही पायदार कौमी तरक्की की ज़मानत है। आबादी की मनसूबा बंदी को तरक्की, इस्तेहकाम, इंसानी वसाइल से हम आहंग करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। और महकमा रेवेन्यू सिंध का अमला सिस्टम की खराबी दूर करने में नाकाम। 3 रोज गुजर गए, महकमा रेवेन्यू का अमला खराबी दूर न कर सका। सैकड़ों प्रॉपर्टी ट्रांसफर केसेस ताखीर का शिकार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस भी कोई काम न कर सका। महकमा रेवेन्यू ने गुज़श्ता रोज प्रेस रिलीज में सिस्टम की बहाली का दावा किया था। महकमा रेवेन्यू की गलती की वजह से शहरियों के NDC ज़ाया हो रहे हैं। बैंक से मॉर्गेज कराने वाले शहरी भी परेशान हैं। कई सौदे मनसूखी की जानेब बढ़ रहे हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह को सिस्टम फाल होने की गुज़श्ता रोज गलत मालूमात फराहम की गई। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमलों में B-1 बमबार तैयारे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अमरीकी न्यूज़ वेब एक्सियोस का कहना है, अमरीकी अफवाज ने पासदाराने इनकलाब के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए गुज़श्ता रोज तवील फासले तक मार करने वाले B-1 बमबार तैयारे का इस्तेमाल किया। ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयों पर गौर। अमरीकी और इसराइली हुकाम का कहना है, ऐसा चंद दिनों के अंदर हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस मकसद के लिए अमरीका मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फौज, असलहा और तिबी अमले को मुंतकिल कर रहा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने $1.15 ट्रिलियन मालियत का दिफाई बजट मंजूर कर लिया। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है, दुश्मन ने ईरानी सरजमीन पर नापाक कदम रखे तो नाकाबिले फरामोश जवाब दिया जाएगा। ईरान आपने होर्मुज कंट्रोल करके अमरीका के सामने डट कर खड़ा है। ऐसे कहते हैं जैसे पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहती हैं। ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा ना चाचा। अपनी बहन से कहता हूँ अपने वालिद को बता दें, उनकी भी 3 मरतबा हुकूमत रही है। बिलावल भुट्टो का मरीम नवाज को जवाब। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कहा, इलेक्शन में नून लीग वाले मुश्किल में हैं। आज आपके पाँव भी पकड़ेंगे, इलेक्शन ख़त्म होंगे तो गले से पकड़ेंगे। ये समझते हैं कि रायबंद ही पंजाब है। मैं तो मुंह नहीं लगाना चाहता, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। नून लीग का मंशूर ये है कि मियाँ साहब का दिल करता है कि हम अहम इस्लाहात लेकर आएँ। वो चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का फैसला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म करे। हुकूमत का वज़ीर आज तक अपनी बात पर कायम है। वो वज़ीर नहीं मानता कि मीरपुर और रावलाकोट कश्मीर का है। वज़ीर आज़म उस वज़ीर को काबीना से नहीं निकालते तो ये फिर उनकी पॉलिसी है। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। आप एक जमात के चेयरमैन हैं, अपने ओहदे का ही ख्याल करें। सिंध में तर्जमानों की फौज क्या पंजाब पर गुस्सा निकालने के लिए रखी है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च किया जा रहा है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे।
मरियम नवाज की हुकूमत को सिर्फ 2 साल हुए, उन्होंने वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से बिहाड़ी तक पहुंचा दिया। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। पंजाब में आप चौथे नंबर की जमात हैं तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब तो ये डिटरमिन नहीं करेंगे कि कौन कश्मीरी है और कौन कश्मीरी नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो कश्मीरी कहता है तो यार कहने दें, आपको क्या ख्याल है। ख्वाजा आसिफ ये फैसला नहीं करेंगे कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर कहते हैं, जब आप अहम हुकूमती मनसब पर हों तो फिर बड़ा सोच समझ कर बयान देना चाहिए। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे शर्मिंदगी और किसी की दिल आज़ारी हो। ख्वाजा आसिफ उड़ जाता है, पता नहीं कैसा कश्मीरी है। सियासतदान में लचक होनी चाहिए। भारत में जेनजी की बगावत, मोदी ने घुटने टेक दिए। तलबा के शदीद एहतजाज पर मोदी ने पैंतरा बदल लिया। कहा, तलबा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। नौजवानों की फलाह व बहबूद इंतहाई अहम है। पर्चा लीक करने के जिम्मेदारों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने का ऐलान। शदीद अवामी दबाव के बाद हुकूमत ने इम्तिहानी इस्लाहात का इंदिया दे दिया। महकमा रेवेन्यू सिंध के प्रॉपर्टी ट्रांसफर सिस्टम में खराबी। सिस्टम 3 रोज से गैर फाल, हजारों शहरी जायदाद ट्रांसफर करवाने के लिए परेशान। हुकाम के मुताबिक ऑनलाइन सिस्टम में खराबी पैदा हुई जिससे चालान डाउन लोड नहीं हो रहा। सिस्टम की खराबी दुरुस्त करने के लिए अमला काम कर रहा है। वज़ीर आला सिंध ने फनी खराबी का नोटिस ले लिया। पोर्टल बंद होने पर इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट के नए सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया। आगाज 11 अगस्त से मुल्तान में होगा। 16 रीजन्स की 18 टीमों की तादाद बढ़ाकर 20 कर दी गई। प्रेसिडेंट ट्रॉफी के तीनों टूर्नामेंट्स 12 सितंबर से शुरू होंगे। और 74 अक़वाम, 3000 एथलीट, 10 खेलों के मुकाबले और 215 सोने के तमगे। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आज से 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज होगा। इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम समेत पाकिस्तान के 20 एथलीट इवेंट में शिरकत करेंगे। गोल्डन बॉय तकरीब में सबसे लाली परचम थामे पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत करेंगे। अरशद नदीम इवेंट में अपने एजाज का दिफा करेंगे। मेगा इवेंट 2 अगस्त तक जारी रहेगा।